In the first video, we have discussed about the what is computer, how data is processed, and the strength characteristics of computer system. Types of computer systems, parts of computer system. Arithmetical logical unit and control unit. So now the essential computer hardware. A computer hardware device fall into one of four categories. First is processor. The procedure that transforms raw data into useful information is called processing, and the processor is like the brain of the computer. A personal computer processor is usually a single or set of chips contained on a circuit board. Memory device. So, memory device are of two types. First is random access memory and another is read only memory. Random access memory is like an electronic scratch pad inside the computer. RAM is something look like this, as you are seeing in the image. RAM is made up of set of chips mounted on a small circuit board. RAM is a volatile memory. RAM has a tremendous impact on the speed and the power of the computer. As RAM, you have heard the word RAM. आपने हर जगह सुना होगा रैम. What is RAM? देखिए RAM is the random access memory. All the instruction application you run on the real time that are work on the RAM. That's why when you buy something like any electronics device like mobile or computer, so the vendor provide you that it has a 8 GB RAM, it has a 4 GB RAM, it has a 64 GB secondary storage. That is RAM. Now next is read only memory. Read only memory is a non-volatile memory, which means it is a permanent. ROM permanently stores its data even when the computer is shut off. अगर सिस्टम बंद भी हो जाता है, कंप्यूटर बंद भी जाता है, तो रोम के अंदर डाटा जो होता है वो रहता है. बट इन द केस ऑफ रैम द डाटा इज gone. When you switch off the computer, you turn off the computer, the data which is running on the RAM is gonna clear. So RAM holds content that the computer need to operate. ये ऐसे कंटेंट रोम जो है, रोम ऐसे कंटेंट होल्ड करता है जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर चलता है. बायोस इज द मेन थिंग विच बायोस इज द फर्स्ट थिंग विच इज इंस्टॉल इन योर कंप्यूटर. पहली एप्लीकेशन होती है बायोस, जो आपके सिस्टम के अंदर प्री इंस्टॉल आता है. मतलब कभी भी कोई चिप के अंदर कुछ इंस्टॉल आता है, विंडोज़ वगैरह आप जब डालते हैं उससे पहले जो सिस्टम के अंदर होता है वो होता है बायोस. सो देखिए रैम कुछ इस तरीके से दिखती है. दिस इज़ द इमेज ऑफ रैम एंड यू आर लुकिंग एट द स्लॉट. ट्राई टू फोकस ऑन दिस. यू आर लुक एट दिस इज़ द रैम slot. It is a temporary and a volatile. RAM in the storage. RAM is in the RAM measure in the capacity of MB and GBs. So look at the diagram here. Hard drive, RAM, and monitor screen. So both are interconnected. So data such as document, program are transferred from hard drive to memory. हार्ड ड्राइव में आपका डाटा होता है, वो रैम में शो होता है. रैम उसे को कहाँ शो करती है, और डाटा को कहाँ व्यू करती है, आपके डिस्प्ले पे. रोम देखिए, रोम छोटी सी डिवाइस होती है, एक छोटी सी चिप होती है जिसके अंदर आपका बायोस वगैरह इंस्टॉल्ड होता है. तो अगर इसको कंपेयर करें रैम से, तो इसकी स्टोरेज बहुत कम होती है, इसका साइज़ भी बहुत कम होता है. ये केबीज में आता है. इट इज़ कंटेन ए स्पेशल सॉफ्टवेयर कॉल्ड फर्मवेयर. देखिए जो स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है फर्मवेयर, माने कि जब आप कोई, जैसे आप डेल का सिस्टम लेते हैं, डेल का लैपटॉप लेते हैं, तो उसमें डेल की बायोस मतलब डेल का फर्मवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है. अब
HP का लेते हैं तो HP का होता है, किसी और कंपनी का एप्पल का लेते हैं, मैकबुक लेते हैं तो मैकबुक का फर्मवेयर अपलोड होता है। ये जो फर्मवेयर होता है ये पहला सॉफ्टवेयर होता है जो किसी सिस्टम के अंदर इंस्टॉल किया जाता है। सो फर्मवेयर ऑल्सो नोन एज बायोस, स्टार्टअप प्रोग्राम और सीमोस सेटअप। इसको बायोस बोलते हैं, स्टार्टअप प्रोग्राम भी बोलते हैं और सीमोस सेटअप भी बोलते हैं। कंटेन इट इज़ अ नॉन वोलेटाइल, ये नॉन वोलेटाइल है और परमानेंट मेमोरी टाइप होता है, और ये परमानेंट होता है, मतलब इसके अंदर जब एक बार इंस्टॉल हो गया तो रिमूव नहीं होता, परमानेंटली स्टोर डाटा होता है, चाहे आपका सिस्टम ऑन हो चाहे ऑफ हो। जब आप ऑफ करेंगे उसके बाद भी डाटा इसके अंदर परमानेंटली स्टोर रहेगा। Now, so RAM and ROM are the primary storage devices. Now come to the storage devices or secondary storage devices. So the memory location where used to store data information permanently. देखिए मेमोरी लोकेशन, स्टोरेज डिवाइस या सेकेंडरी स्टोरेज ऐसी लोकेशंस होती हैं जहाँ पे डाटा और इन्फॉर्मेशन इज परमानेंटली स्टोर होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ हार्ड ड्राइव, HDD, CD-ROM, DVD-ROM, tape drive, and these are in much larger capacities। देखिए अगर रैम रोम से कंपेयर करेंगे, रैम देखिए रोम तो रैम से ही छोटी होती है, अगर रैम से हार्ड ड्राइव को या सेकेंडरी स्टोरेज को कंपेयर करेंगे तो रैम सेकेंडरी स्टोरेज से बहुत कम होती है। रैम का काम होता है आपके एप्लीकेशन को रन करना, डाटा स्टोर होता है आपका सेकेंडरी स्टोरेज में। सो ज़्यादातर जो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज होती हैं वो GB में होती हैं। हार्ड डिस्क, CD-ROM एक्सेट्रा। देखिए दिस इज़ फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क चलती थी 2000 के टाइम पे, सबसे पहले फ्लॉपी डिस्क ही आई थी, जिसके अंदर आप जैसे आज पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड यूज़ करते हैं, पहले फ्लॉपी डिस्क आती थी। उसके बाद CD-ROM आई, फिर देखिए हाई कैपेसिटी की फ्लॉपी डिस्क आने लगी, उसके बाद देखिए हार्ड ड्राइव आई, हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव के भी कई सारे टाइप्स हैं, IDE, SATA एंड देन द लेटेस्ट वन इज SSD, SSD is simple solid device. These are optical discs, you also call them CD drives. And optical discs have some kinds like Blu-ray disc, digital versatile disc, compact disc। देखिए डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होती है, इसमें एक बार डाटा स्टोर हो गया, और कुछ आती थी जिसमें आप बार बार मतलब आपने डाटा स्टोर करा, अपना यूज़ करा, उसको आपको रिमूव कर दोबारा से उसको रीराइट कर दिया, दोबारा से कर दिया। सो CDRW होती थी रीराइटेबल, और CDR होती थी राइट वंस। एक बार आपने डाटा लिखा, डाटा उसमें इंस्टॉल कर मतलब आपने लोड कर दिया, वो लोड हो गया, उसके बाद तो CD में आप डाटा रिमूव कर दोगे तो CD में दोबारा डाटा लोड नहीं होगा। लेकिन उसके बाद उसमें भी रिवोल्यूशन आया और CDRW आई रीराइटेबल, मतलब बार बार आप डाटा लोड कर सकते हो, और इनका साइज़ भी बढ़ने लगा, और साइज़ देखिए 700 MB तक आ गया था। अदर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस और सॉलिड स्टेट स्टोरेज, नो मूविंग पार्ट्स, फ्लैश मेमोरी कार्ड्स। लुकिंग एट दिस, देखिए फ्लैश मेमोरी कार्ड, मेमोरी चिप्स, 2GB, सैनडिस्क, पेन ड्राइव, USB फ्लैश ड्राइव, देयर आर lots of secondary storage devices. Now the next topic is the communication devices. Communication devices. So communication devices, hardware devices used for the communication purpose। देखिए जो communication purpose के लिए यूज़ होती है, मतलब इंटरनेट पे communication purpose के लिए जो डिवाइसेस होती हैं, जो डिवाइसेस यूज़ होती हैं, these devices are as follows: modem, router, switch and hub and repeater. These are the communication devices. Input devices used to input the data in the computer system, and input devices are keyboard, mouse, joystick, microphone, webcam, scanner and monitor. These are the input devices. So the typical personal computer system is look like this। देखिए अगर एक कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम देखेंगे तो देखिए उसके अंदर क्या क्या होता है। एक कम्युनिकेशन के लिए इंटरफेस होता है, एक कीबोर्ड होता है इनपुट के लिए,
एक टेप होता है स्टोरेज के लिए, मॉनिटर होता है आउटपुट शो करने के लिए, हार्ड ड्राइव होती है, प्रिंटर होता है, स्पीकर होता है, CD RW और DVD DVDs के लिए स्लॉट होता है, CPU होता है, मेमोरी होता है, इनपुट एंड आउटपुट इंटरफेस होता है। इन सबको मिला के कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम बनता है, पर्सनल सिस्टम बनता है। कीबोर्ड आप हर जगह आपने कीबोर्ड देखे, यू आर अवेयर ऑफ कीबोर्ड, देखिए ट्रेडिशनल कीबोर्ड, फ्लेक्सिबल कीबोर्ड, एर्गोमेट्रिक कीबोर्ड, वायरलेस कीबोर्ड, पीडीए कीबोर्ड यानी मोबाइल के जो कीबोर्ड्स होते हैं। माउस, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज माउस। देखिए माउस भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक मैकेनिकल माउस, एक ऑप्टिकल माउस। आजकल ज़्यादातर ऑप्टिकल चलते हैं, मतलब ज़्यादातर नहीं, एवरीवेयर ऑप्टिकल ही चलते हैं, लेकिन अब से पहले मैकेनिकल माउस चलते थे जिनके अंदर एक रोलर होता था। ये रोलर रियर होता था, ये घूमता था। अब के में आता है एक सेंसर, एक लाइट सेंसर होता है जो वो रन करता है। ठीक, अदर पॉइंटिंग डिवाइसेज आर ट्रैक बॉल, ट्रैक पॉइंट, टच पैड, टच स्क्रीन, दीज आर पॉइंटिंग डिवाइसेज। Joystick is like this for used for gaming purpose. Light pen is used for study purpose, and stylus is used to like pen-like devices. Commonly, stylus is pen-like devices. You will show in the tablet, PC, PDA यानी कि फ़ोन डिवाइसेस में आती हैं, जैसे नोट सीरीज में आती हैं, जिससे आप अपना पेन की तरह यूज़ कर सकते हैं स्क्रीन को चलाने के लिए, लिखने के लिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट इज स्कैनिंग डिवाइसेस। देखिए स्कैनिंग डिवाइसेस क्या होती हैं, आपने देखा होगा फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है, बारकोड रीडर होता है। आप कभी मॉल्स वगैरह में व्हेन यू गो टू मॉल्स टू बाय समथिंग, यू विल सी द व्हेन यू गो टू द बिलिंग काउंटर, द बंदा क्या करता है, वो एक बारकोड स्कैनर लेता है कुछ इस तरीके का, और आपका बारकोड को स्कैन करता है। उसका जो स्कैनर के बाद जो डाटा होता है आपका उसके सिस्टम के अंदर चला जाता है और वो आपका प्राइस बता देता है। Image capturing devices. Image capturing devices are like digital cameras, digital video cameras. These are the image capturing devices. Now, what are output devices? देखिए मीडिया यूज बाई कंप्यूटर इन डिस्प्लेइंग इट्स रेस्पॉन्सेज टू आर रिक्वेस्ट एंड इंस्ट्रक्शन। देखिए जहाँ पे हम इनपुट एंटर करते हैं, डाटा प्रोसेस होता है, लेकिन प्रोसेस होके जहाँ पे वो दिखेगा, मतलब जहाँ यूज़र को उसकी जानकारी मिलेगी या यूज़र को अपनी इन्फॉर्मेशन शो होगी, उसको बोलते हैं आपके आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस आपका डिस्प्ले हो सकती है, ऑडियो स्पीकर हो सकता है, और प्रिंटर हो सकता है। मतलब आपने अपना डाटा डाला, इनपुट करा, वो आपके पास हार्ड कॉपी में प्रिंट आउट होके आ गया। टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स। देखिए मॉनिटर ऑल्सो हैव मैनी टाइप्स। नाउ 2 टाइप्स, कैथोड रे ट्यूब एंड लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCDs एंड CRT। देखिए CRT इज़ अ ओल्ड सिस्टम। देखिए ओल्ड टेक्नोलॉजी पे बना हुआ था, पहले कैथोड रे ट्यूब होती थी, इसका भी पूरा एक कॉन्सेप्ट है CRT का। लेकिन आजकल कौन से आ गए हैं, अब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले आ गई हैं, LCDs LEDs आ गई हैं। घरों में भी टीवी की जगह अब आजकल LCD LED ही लगने लगी हैं। पहले बल्ब आता था 100 वाट का, आज 5 वाट की LED लाइट आती है। बीच में CFL आई थी, CFL के बाद क्या आई, LED लाइट। और देखिए 100 वाट का बल्ब के बराबर ही आज 10 वाट की आपकी LED बराबर रोशनी देती है। और देखिए कितना फ़र्क है, एक 100 वाट का बल्ब है आपका, एक 20 वाट की LED है, और ये बल्ब है आपका, तो कितना डिफरेंस है। देखिए 80 वाट हो जा रहा है आपका। नाउ लेट डिस्कस अबाउट द प्रिंटर। सो प्रिंटर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, फर्स्ट इज इम्पैक्ट प्रिंटर एंड सेकेंड इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। सो प्रिंटर इज ए समटाइम्स वी नीड टू सेव परमानेंट कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन। जब हम कभी परमानेंट कॉपी आपको रिक्वायर्ड होती है, जैसे कि आप मार्कशीट ही देख लीजिए, कोई नोट्स भी है, जैसे मैं ये नोट्स डाल रहा हूँ, आपको इन नोट्स की आपको परमानेंट कॉपी चाहिए होगी अपने पास, तो क्या करेंगे आप कैफ़े में जाएंगे, प्रिंटर से इनका प्रिंट आउट निकलवाएंगे और इसको A4 साइज पेपर पे अपने पास स्टोर करेंगे। सो प्रिंटर्स को क्लासीफाई करा गया है 2 टाइप्स में, एक होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरे होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। सो इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर्स के भी 2 टाइप्स है, एक होते हैं डेसी व्हील
और सेकंड होते हैं मैट्रिक्स प्रिंटर। डेसिबल प्रिंटर्स, लाइन प्रिंटर्स, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स एंड बैंड प्रिंटर्स आर द एग्जाम्पल ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर। एक्चुअली इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते क्या हैं? सो द इमेज इज प्रोड्यूस ऑन पेपर बाय हिटिंग एन इंक रिबन विद ए हैमर लाइक डिवाइस। There is a direct contact between the ribbon and the print head. A dot matrix printer is an example of such printer. They are mainly used for printing bills in shops and in the banks. देखिए, आप कभी जाते हो तो बैंक में वगैरह में जाते हो, आप बैंक वगैरह में जाते हो तो उनके पास कुछ इस तरह की डिवाइसेस होती है जिसमें आपकी क्या होती है, देखा होगा आपने, पासबुक वगैरह जब प्रिंट होती है तो पासबुक जब प्रिंट होती है तो उस पर मशीन कोई लिखती है, तो वो जो होते हैं वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं। और ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और कहाँ यूज़ होते हैं? जब आप बिल वगैरह निकालने जाते हो, जब किसी मॉल से आप लेते हो, छोटी सी मशीन होती है उसमें बिल निकल के आता है, तो वो क्या होते हैं? ये आपके इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं। अब इम्पैक्ट प्रिंटर्स के भी टू टाइप्स होते हैं, एक करेक्टर प्रिंटर्स एंड एक लाइन प्रिंटर्स। करेक्टर प्रिंटर्स एंड लाइन प्रिंटर्स। सो करेक्टर प्रिंटर्स आर सिंगल करेक्टर एट ए टाइम, मतलब एक बार में एक करेक्टर टाइप करेंगे। दे आर स्लो एंड कैन ओनली प्रिंट टेक्स्ट, ये बहुत स्लो होते हैं और टेक्स्ट ही प्रिंट कर पाते हैं। डॉट मैट्रिक्स एंड डेसिबल प्रिंटर्स बिलोंग टू दिस कैटेगरी। डॉट मैट्रिक्स एंड डेसिबल प्रिंटर्स जो होते हैं ये इस कैटेगरी में आते हैं, यानी करेक्टर प्रिंटर्स में आते हैं। इसके बाद आपका है नेक्स्ट डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। सो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स आर यूज इन देखिए डेसिबल प्रिंटर्स आप समझ रहे हैं, डेसिबल प्रिंटर आपने देखे होंगे जब आप कभी तहसील में जाते हैं तो एक जो टाइपराइटर होता है लिखता रहता है, पट पट आवाज़ आती रहती है, तो वो डेसिबल प्रिंटर्स होते हैं। डेसिबल प्रिंटर हैज ए प्लास्टिक और मेटल व्हील, द शेप ऑफ ईच कलेक्टर स्टैंड आउट like the petals of daisy flowers. A hammer presses the wheel against the ribbon while it is rotating. The printers are the slowest with a speed of about 30 cps. Now come to the line printer. Line printers क्या होते हैं? The print an entire line of text at a time. The line printer are very fast and having speeds in the range of 150 to 2500 lines per minute. But they produce low quality print. Drum and chain printers belong to this category. देखिए ड्रम प्रिंटर और चैन प्रिंटर इस कैटेगरी में आते हैं, बहुत फास्ट होते हैं लेकिन जो क्वालिटी होती है वो इज़ नॉट एज कम्पेयर टू नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर से देखेंगे तो आप उनकी क्वालिटी में डिफरेंस होता है। चलिए अब बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, there is a no direct contact between the print head and the paper. These can be used to print both text and image in blank ink or in color. देखिए आजकल आपने ये तो आप इंकजेट प्रिंटर आपने हर शॉप में देखे होंगे। अब किसी कैफ़े में जाएंगे, कहीं भी प्रिंट आउट निकलवाए जाएंगे, कहीं इमेज निकलवाए जाएंगे, जो प्रिंटर यूज़ होते हैं ऑल आर इंकजेट प्रिंटर्स, लेजर प्रिंटर्स, थर्मल प्रिंटर्स। So, non-impact printers are faster and produce better quality output than impact printers. इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि आपके जो impact printers होती है उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है as compared to non-impact printers, and they can print up to 24 pages per minute. They hardly make any noise during printer. These printers are costlier than impact printers. Now, first printer in this category is inkjet printer. Inkjet printers produce hard copy by spraying ink onto the paper. The print head has several tiny nozzles called jets. देखिए जेट्स, इसके अंदर tiny nozzle होती हैं, उनको जेट्स बोलते हैं, जिसलिए इसका नाम इंकजेट पड़ा। As the paper moves past the print head, the nozzle spray ink onto it, forming the character and images. A typical inkjet printer can produce a hard copy with a resolution of at least 300 dots per inch. Then comes to the next laser printer. Laser printer के बाद बात करते हैं। Laser printer are used dry. देखिए ड्राई इंक यूज़ होती है जिसको बोलते हैं टोनर। ड्राई इंक को टोनर बोलते हैं। टू प्रिंट टेक्स्ट और इमेजेस ऑन अ पेपर, किसी पेपर पे टेक्स्ट और इमेज को प्रिंट कराने के लिए। तो इट यूज ए लेज़र बीम। लेज़र बीम यूज़ करता है टू क्रिएट ए डॉक्यूमेंट ऑन ए
सेलेनियम कोटेड ड्रम यूजिंग ए इलेक्ट्रिकल चार्जेस। ड्रम होता है इसके अंदर एक, उस ड्रम के अंदर ये सेलेनियम कोटिंग ड्रम होता है जिस पे अपने इलेक्ट्रिकल चार्जेस से ये क्या करता है, क्रिएट करता है लेजर बीम से, प्रिंट आपका तैयार कर देता है। जब पेपर इसके नीचे से निकलता है, आफ्टर ड्रम इज चार्ज इट इज़ रोल्ड ऑन द टोनर, और जब ड्रम चार्ज हो जाता है तो टोनर पे रोल कर दिया जाता है, और द टोनर स्टिक्स टू द चार्ज इमेजेस ऑन द ड्रम। क्या होता है देखिए, मैं आपको समझाता हूँ फिर से। लेज़र प्रिंटर यूज़ करता है ड्राई इंक, और इसके अंदर एक ड्रम टाइप का आता है जिस सेलेनियम कोटेड ड्रम होता है, जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस को यूज़ करता है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है, इलेक्ट्रिकल चार्जेस उस पर आते हैं। जब वो इलेक्ट्रिकल चार्जेस चार्ज हो जाता है, जब आपका ड्रम चार्ज हो जाता है तो क्या करता है, टोनर का मतलब ड्राई इंक पे रोल कर देते हैं। ड्राई इंक पर रोल हो जाता है, और देन टोनर इज ट्रांसफर्ड ऑन टू ए पीस ऑफ पेपर, और फिर उस टोनर को क्या कर देते हैं, एक पीस ऑफ पेपर पे प्रिंट कर देते हैं। ये सब काम कौन करती है, एक मशीन करती है। और इस मशीन के अंदर क्या डिवाइस होती है, इसके अंदर अपनी रोम होती है, जिसके वजह से ये फंक्शन जो ये कर रही है, ये फंक्शन अपनी रोम के वजह से कर रही है। और इंस्ट्रक्शन कहाँ से मिलते हैं इसको, आपके कंप्यूटर से मिलते हैं। अब बेटर समझोगे आप कि रोम हर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में होती है, प्रिंटर में, माइक्रोवेव में, हर जगह रोम होती है, तभी तो वो अपना काम कर पाते हैं। भाई जो उसका काम है, वो जो काम कर रहा है, प्रिंटर का जो काम है, कैसे उसको इंक जेट प्रिंटर में जेट्स को कैसे यूज़ कर, जेट कैसे यूज़ होंगे, कौन सी इंक पे कैसे स्प्रे करेंगे, ये सब इंस्ट्रक्शन, ये जो कोड हैं, ये प्रोग्राम्स हैं, ये सब इसकी रोम में अपडेट है, अपलोडेड है रोम में। और रोम नॉन वोलेटाइल होती है, आप जानते हैं, परमानेंट होती है। सो यू आर लुकिंग एट द ओल्ड पावर सप्लाई। देखिए पहले जो आपके डेस्कटॉप आते हैं, डेस्कटॉप में आपके घर में कोई भी डेस्कटॉप हो पुराना, तो उसमें देखना आप कि ऊपर एक पावर सप्लाई टाइप का, इस टाइप का होता है, उसमें फ़ैन होता है लगा हुआ, ये पावर सप्लाई होती है। आजकल तो बहुत कॉम्पैक्ट हो गई है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, लेकिन एज पहले देखिए पावर सप्लाई आती थी, इसमें आप 220 वोल्ट का करंट जाता था। और ये आप इसके सॉकेट देख रहे हैं, ये सॉकेट्स मदरबोर्ड में कनेक्ट हो जाते थे। मदरबोर्ड यानी कि मेन बोर्ड ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। और ये क्या करते थे, डिस्क ड्राइव कनेक्टर हो गए, पावर हार्ड डिस्क हो गई आपकी, पावर स्विच हो गया, पावर सप्लाई फैन हो गया, इनपुट वोल्टेज सिलेक्टर हो गया, इस सबको क्या करते थे, सबको पावर सप्लाई करता है। पावर सप्लाई, इसलिए इसको पावर सप्लाई बोलते हैं। मदरबोर्ड क्या होता है, मदरबोर्ड पे जितना माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी, बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, एक्सपेंशन स्लॉट, इंटर कनेक्टिंग सर्किटरी, हार्ड डिस्क वगैरह सब किससे कनेक्टेड होते हैं, मदरबोर्ड से कनेक्टेड होते हैं। देखिए टिपिकल मदरबोर्ड कुछ ऐसे दिखता है। इस देखिए मदरबोर्ड है, ये कंप्यूटर का सिस्टम का मदरबोर्ड है। ये देखिए फ्लोपी के लिए स्लॉट है, डुअल चैनल मास्टर स्लॉट है। ये है देखिए बायोस, देखा आपने, ये बायोस है, इसके अंदर आपका बायोस, इसके अंदर प्रोग्राम इंस्टॉल्ड है इस सिस्टम का। ये स्लॉट्स हैं, ये आईसीज लगी हुई हैं, ये प्रोसेसर है, ये प्रोसेसर है आपका मेन प्रोसेसर। ये कूलिंग के लिए यूज़ होता है, नॉर्थ ब्रिज है ये एटीएस पावर कनेक्टर है। तो ये आपका एक मदरबोर्ड है, सिंपल मदरबोर्ड, एक बेसिक डायग्राम दिखाया मदरबोर्ड का। कंप्यूटर का मदरबोर्ड, ये एक पर्सनल कंप्यूटर का मदरबोर्ड है। लैपटॉप का मदरबोर्ड थोड़ा कॉम्पैक्ट होता है इससे। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट दिस सॉफ्टवेयर। देखिए हमने बात करी थी कि कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है, एक कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या बात करी थी हमने, ये बताता हूँ आपको। हमने डायग्राम की बात की थी एक, जिसमें रैम सॉफ्टवेयर की बात की थी। ऐप सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के टू टाइप्स बताए थे, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी दो तरह के होते हैं, पैकेज और लैंग्वेजेस। Software are the instruction that tell the computer how to process data into the form of you want। देखिए सॉफ्टवेयर ही वो इंस्ट्रक्शन होते हैं जो एक कंप्यूटर को बताते हैं कि इस डाटा को आपको कैसे प्रोसेस करना है, जो इनपुट हमने दिया है इस डाटा को कैसे प्रोसेस करना है। सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम्स जो होते हैं वो इंटरचेंजेबल होते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर प्रोग्राम चेंज हो सकते हैं। टू मेजर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, नाउ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
सॉफ्टवेयर में कंपोनेंट्स होते हैं, एक एप्लीकेशन होती है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक कर्नल होता है, एक नेटवर्क मॉड्यूल होता है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आपके नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए ये आपका मेन फ्रेम सिस्टम है, ये मेन फ्रेम सिस्टम है, देख रहे हैं IBM का ये मेन फ्रेम सिस्टम है, Z10EC मेन फ्रेम सिस्टम, और एक सिंपल डेस्कटॉप आपका लैपटॉप है। देखिए आप थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। इतनी सारी हमने बात कर ली कंप्यूटर सिस्टम की, कंप्यूटर सिस्टम ऐसे करता है, कंप्यूटर वैसे करता है, कंप्यूटर सिस्टम ऐसी मशीन है, प्रिंटर्स वगैरह। लेकिन एक्चुअली में कंप्यूटर सिस्टम की हिस्ट्री क्या है, कब कंप्यूटर सिस्टम आया? भाई वर्ल्ड में कभी तो कंप्यूटर सिस्टम आया ना, ह्यूमन ने बनाया, कब बनाया? तो फर्स्ट मशीन जो बनाई, ठीक है, पहले कैलकुलेटिंग मशीन बनाई, सीधा कंप्यूटर नहीं बन गया, पहले कंप्यूटर की कैलकुलेटिंग मशीन बनाई। तो ब्लेस पास्कल ने इन्वेंट करी है कैलकुलेटिंग मशीन 1642 में। देन 1801 में जोसेफ मैरी जैकवार्ड्स इन्वेंट से लूम डेट यूजेस पंच कार्ड। फिर उन्होंने 1801 में जोसेफ मैरी ने एक लूम इन्वेंट करा जो पंच कार्ड्स यूज़ करता था। फिर 1800 में चार्ल्स बेबेज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम इन द कंप्यूटर्स के बारे में की बात करेंगे तो चार्ल्स बेबेज is the father of computer. Charles Babbage attempts to build an analytical engine that is mechanical machine बनाई चार्ल्स बेबेज ने। एक अटैम्प्ट करा उन्होंने बनानी चाहिए, एक मशीन बनाता हूँ, एक मैकेनिकल मशीन बनाता हूँ जो मशीन्स के पार्ट्स का यूज़ करेगी और मैनुअली उसमें डाटा डालेंगे और हमें आउटपुट देगी। देन Augusta Ada Brown develops many of the fundamental concept of programming। और 1800 में अगस्ता एडा बोन ने मैनी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट डेवलप करे प्रोग्रामिंग के। देन जॉर्ज बूल इन्वेंटेड ए बूलन लॉजिक्स इन्वेंट करे गए जॉर्ज बूल के थ्रू। देन मॉडर्न कंप्यूटर डेवलपमेंट, फिर आया मॉडर्न कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ आपका 1800 में। चार्ल्स बेबेज ने एक मशीन स्टार्ट कर दी, देखिए धीरे धीरे उन्होंने इन्वेंशन स्टार्ट होने लगी कंप्यूटर की। अगस्ता ओएडा ब्राउन ने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट डेवलप करे प्रोग्रामिंग के, और जॉर्ज बोले ने बूलन लॉजिक्स को इन्वेंट किया। देन हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मॉडर्न कंप्यूटर डेवलपमेंट। ठीक है, मॉडर्न कंप्यूटर का डेवलपमेंट कब हुआ? मार्क वन आपका पहला कंप्यूटर था जिसका नेम था मार्क वन। ये एकेन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और IBM के लिए बनाया गया। एकेन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और IBM ने मिलकर फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया यूजिंग रिले, इसमें इन्होंने रिले यूज़ करी। देन 1939 में ABC इज़ बिल्ट। ABC अनदर कंप्यूटर सिस्टम, दिस इज़ फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। ये फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, लेकिन ये यूज़ क्या करता था? वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ करता था। 1943 to 46 एन आईनैक इज़ अ जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर। देखिए पहला डिजिटल कंप्यूटर आया 1943 से 46 के बीच में, जिसमें काम करा मोचले, एक्रेट और यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया। देन 1945 में वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर प्रपोज किया गया, और स्टिल द स्टैंडर्ड फॉर प्रेजेंट डे कंप्यूटर। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर जो प्रपोज किया 1945 में, आज भी स्टैंडर्ड है, स्टिल द स्टैंडर्ड फॉर, ये स्टैंडर्ड है कंप्यूटर्स को बनाने के लिए। देन 1947 में ट्रांजिस्टर्स क्रिएट करेंगे, यानी कि ट्रांजिस्टर आपने सुना होगा वर्ड, मैं आपको ट्रांजिस्टर आपकी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा ट्रांजिस्टर कैसे होते हैं। ट्रांजिस्टर्स का यूज़ हुआ पहली बार 1947 में बेले लैब्स में। देखिए बेबेज का एनालिटिकल इंजन ये है, देखिए मैकेनिकल डिवाइस, ये आईनैक है, देखिए ये आईनैक है। थैंक यू क्लास, आज की वीडियो यही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की।